To all of you, myself Asit Kumar Patnaik. My channel name is Asit Sarikomania. Again, I am coming back to my channel. Today, I will discuss sexual harassment of working women at working place. It's very important one of Central Civil Services conduct rule. So please, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that in subsequent time or in postering time you will get notification for my upcoming videos. So other parts of conduct rule also I will bring in postering time. So now I am going to discuss sexual harassment of working women at workplace. First one, Rule 3C of CCS Conduct Rules 1964 prohibits sexual harassment of any woman at her workplace. One question is coming. Which conduct rule of 1964? The red mark is important one. Rule 3C. It is very important one. Many times question is coming. Special provisions of the rule. No government servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her workplace. Second one, every government servant who is in charge of a workplace shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman employee at such workplace. Second point is very important one. It is the duty of the head of the institution to take some preventive steps so that any woman employee cannot be victimized, cannot be harassed. Okay, so it is the responsibility of the head of the institution to prevent such type of things. Next one, sexual harassment defined in third point. It is very important one. Unwelcomed sexually determined behavior, whether directly or otherwise, as physical contact and advances. All these points, all the following points included in sexual harassment. All the above points, if it is happen, then it is included in sexual harassment. Physical contact and advances, demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, showing any pornography or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature. Fourth point, an act of sexual harassment associated with the following circumstances shall amount to sexual harassment. Then again, just you consider the sub points of point 4. It is very important one. Options coming in the examination, whether these points included in sexual harassment or not. First one, implied or explicit promise of preferential treatment in employment, or implied or explicit threat of detrimental treatment in employment, or implied or explicit threat about her present or future employment status, or interference with her work, or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her, or last one, humiliating treatment likely to affect her health or safety. ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम चलेंगे वर्क प्लेस. फर्स्ट पॉइंट, एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the central government. Point number 2, hospitals or nursing homes. Point number 3, any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not, used for training, sports or other activities relating thereto. Point number 4,
any place visited by the employee arising out of or during the course of employment, including transportation provided by the employer for undertaking such journey. Last one, point number 5, a dwelling place or a house. So just to remember the workplace also, question may be coming related to the workplace. On becoming of a government servant, it is the most important part of the conduct rule, CCS, Central Civil Services Conduct Rule 1964. Rule 31 triple I. Rule 31 triple I. This rule, just to remember, question is asking in the examination. Any act of sexual harassment of women employees attracts the provisions of Rule 31 triple I of conduct rules as an act unbecoming of a government servant and amounts to misconduct. So, unbecoming of a government servant is most important one. Rule is coming. Rule 31 triple I of conduct rule. Just to remember. Related to this question is coming. Criminal proceedings. If any such act is punishable under the Indian Penal Code (IPC) or any other law, the concerned authorities shall make a complaint with the appropriate authority for initiating criminal action against the employee. Okay? In this case also, the authority, the head of the institution, should have contact with the appropriate authority for initiating criminal action against the employee. Okay? And it must be punishable under the Indian Penal Code or any other law. Clear? Just to remember criminal proceedings. Complaint mechanism in every organization, every department, in every institution, one proper complaint mechanism is there to redress the problems in regarding to the sexual harassment. It is very important one. So whether or not such conduct constitutes an offense under law or a breach of the service rules, an appropriate complaint mechanism should be created in every organization for redress of the complaint made by the victim. So in any time, if any complaint received in the institution or organization or in any department regarding to the sexual harassment, so proper complaint mechanism should be there. Immediately investigation should be going on. Okay? Immediately proceedings should be initiated, whether the particular thing is happened or not. So such complaint mechanisms should ensure time-bound treatment of complaints within specific time. Now we know that internal complaint committee in every organization, internal complaint committee is there. This committee must give report within 1 month and it can be extended up to 3 months. Just to remember, it is very important one. In subsequent time I will discuss. So the report should be submitted to the disciplinary authority within 1 month, or it can be extended up to 90 days, not beyond of that. So it is a time-bound process. Okay, definitely the proper trial or proper investigation and the report should be submitted within time. Whenever such mechanisms for redressal of grievance already exist, they may be made more effective, and in particular women officers should preferably handle such complaints. Composition of complaint committee. The complaint of the committee should be headed by woman. So main presiding officer is the woman of the same institution. Okay, and the woman must be in senior level. The complaint committee should be headed by woman, and not less than half of its members should be women. So head of the complaint committee should be a woman employee, and she must be in senior rank than the charged officer, than the suspect officer. Clear? जो सस्पेक्ट ऑफिसर का जो पे लेवल है उससे हायर पे लेवल का होना चाहिए. जो हमारा हेड कंप्लेन कमिटी का जो हेड, जो वोमैन हेड होगा, जो वोमैन एम्प्लॉय हेड होगा, उसका जो पे लेवल होगा वो चार्ज्ड ऑफिसर और सस्पेक्ट ऑफिसर से उसका पे लेवल ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा हायर पोस्ट होना चाहिए. एंड
50% members, at least 50% of the members should be women members. Further, to prevent the possibility of any undue pressure or influence from senior levels, such complaint committees should involve a third party. Actually, in last part already I have discussed. So just to remember, head of the committee must be a woman employee. She must be in senior rank. She belongs to the same organization. If that type of employee it is not available, then need the help of any other office. Clear? At least 50% of the members should be women members. Third party. So to prevent any undue pressure or influence from senior levels, such complaint committees should involve a third party, either NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment. So third one, it is very important one. To prevent any undue pressure or influence from senior level, a third party must be engaged. Third party must be NGO or any other body who is familiar with sexual harassment. Next point is very important one. Committee should be headed by an officer sufficiently higher in rank so as to lend credibility to the investigations. So already I have discussed, head must be a woman employee who is in senior rank than the charged or suspect officer, so as to lend credibility to the investigations. For inquiring into complaints made against officers of the level of secretary, additional secretary and equivalent level of Government of India, a separate complaint committee has been set up by the Cabinet Secretariat with the approval of the Prime Minister. It is very important one. Any officers related to the secretary, additional secretary and equivalent post of Government of India, separate complaint committee must be set up by the Cabinet Secretariat after the approval of the Prime Minister. Separate complaint committees should not be set up for each complaint of sexual harassment case. Separate committee is not required for each sexual harassment case. The same committee can investigate. Separate committee cannot be made. It is very important one. It is necessary to have in place at all times an effective mechanism for dealing with cases of sexual harassment and to create awareness in this regard. There should be standing committee in each organization for inquiring into any such complaints. The complaint committee must make an annual report to the government department concerned of the complaints and action taken by them. So complaint committee must prepare annual report, and every year it must be submitted on January 31st. Okay, within January 31st of the preceding year. Annual report in regarding to the, in annual report what type of things included? Basically different cases related to the sexual harassment, how many cases disposed of, how many cases pending and already completed, it means beyond 90 days, how many awareness programs organized in the institution or organization to prevent the sexual harassment, और if the proceeding completed what type of action taken by the employer. So ये सब annual report में होना चाहिए और annual report submit होगा every year January 31st के अंदर होना चाहिए जो preceding year का. Clear? जैसे 2020 का कब रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा डिपार्टमेंट को ना, जनवरी, विद इन जनवरी 31st 2021. सपोज 2021 का कब सबमिट होगा? जनवरी 31st 2022 के अंदर. So just to remember, it is very important one. It would also be desirable of the committee to meet once in a quarter, even if there is no live case. Suppose there is no live case, there is no case related to the sexual harassment. Okay, instead of this also, the committee in every quarter, it means in every 3 months, the meeting should be organized, whether there is any live case or not, no problem, and review preparedness to fulfill
all requirements of the Visakha judgment in the department or ministry or organization concerned. Then status of the report of the complaint committee, it is very important one. Rule 14(2) of Central Civil Services CCA Classification Control and Appeal Rules 1965, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील के ऊपर मैं इसके बाद कंडक्ट रूल्स के बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा. तो जस्ट यू रिमेंबर रूल 14(2) ऑफ CCA रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCA इज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 has accordingly been amended to provide that the complaint committee shall be deemed to be the inquiry authority. The same complaint committee, internal complaint committee of the institution or organization or department, okay, this committee ultimately is the inquiry authority. The report of the complaint committee should be treated as an inquiry report and not a preliminary report. जो भी कंप्लेंट कमिटी रिपोर्ट देगा वो इंक्वायरी रिपोर्ट होगा, वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं होगा, और उसी कंप्लेंट कमिटी को हम इंक्वायरी अथॉरिटी मानेंगे. द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल एक्ट ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स. यहां पर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो भी कंप्लेंट कमिटी जो रिपोर्ट देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, उसी के हिसाब से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्शन इनिशिएट करेगा. द एक्शन वुड बी इनिशिएटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द कंप्लेंट कमिटी इन रिगार्डिंग टू द सेक्सुअल हरासमेंट. क्लियर? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज द अपॉइंटेड अथॉरिटी. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बेसिकली इट इज द अपॉइंटेड अथॉरिटी. देन रिक्वेस्ट ट्रांसफर. कभी विक्टिम जो कंप्लेनांट है वो विक्टिम, जो विक्टिम वोमेन, वो रिक्वेस्ट कर सकता है खुद का ट्रांसफर के लिए, और जो चार्ज्ड ऑफिसर, जो सस्पेक्ट ऑफिसर, उसका ट्रांसफर के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है. बेसिकली इन केस ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर द विक्टिम डिमांड फॉर हर ओन ट्रांसफर और ऑल्सो डिमांड फॉर द ट्रांसफर ऑफ परपेट्रेटर. यह परपेट्रेटर इज द चार्ज्ड ऑफिसर और सस्पेक्ट ऑफिसर. वो विक्टिम रिक्वेस्ट कर सकता है, खुद का ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर सकता है, और जो जिसको कल्पिट माना जाता है, जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया है, उसका ट्रांसफर के लिए जो विक्टिम है वो रिक्वेस्ट कर सकता है. पावर्स ऑफ द कंप्लेंट कमिटी, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है. टू ट्रांसफर द अग्रीव्ड वोमेन, बेसिकली विक्टिम, अग्रीव्ड वोमेन इट इज विक्टिम, और द चार्ज्ड ऑफिसर इज द सस्पेक्ट ऑफिसर ऑन हुम द सेक्सुअल हरासमेंट केस इज मेड टू एनी अदर वर्क प्लेस. तो कंप्लेंट कमिटी का पावर है, वो विक्टिम को ट्रांसफर कर सकता है और चार्ज्ड ऑफिसर को भी ट्रांसफर कर सकता है. वो कंप्लेंट कमिटी का हाथ में है. द कंप्लेंट कमिटी हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू मेक ट्रांसफर ऑफ द विक्टिम और टू मेक ट्रांसफर ऑफ द चार्ज्ड ऑफिसर और सस्पेक्ट ऑफिसर टू एनी अदर प्लेस. नेक्स्ट पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. टू ग्रांट लीव टू द अग्रीव्ड वोमेन अप टू ए पीरियड ऑफ 3 months. कंप्लेंट कमिटी 3 months का लीव दे सकता है विक्टिम को, जो कंप्लेनांट है, जो विक्टिम है, ओके, तो उसको 3 months का लीव दिया जाएगा, मगर उसका जो लीव अकाउंट है सर्विस बुक में उससे डेबिट नहीं होगा. जो अप टू ए पीरियड ऑफ 3 months, जो अप टू 3 months जो लीव उसको मिल सकता है, वो उसका जो सर्विस बुक में जो लीव रिकॉर्ड है उससे डेबिट नहीं किया जाएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. टू ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द अग्रीव्ड वोमेन आज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. टू डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी और वेजेस ऑफ द चार्ज्ड ऑफिसर द सस्पेक्ट ऑफिसर. चार्ज्ड ऑफिसर इज सस्पेक्ट ऑफिसर, और इसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट ऑल्सो. चार्ज्ड ऑफिसर, सस्पेक्ट ऑफिसर, रेस्पोंडेंट, सेम थिंग. टू डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी और वेजेस ऑफ द चार्ज्ड ऑफिसर सच as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to her legal heirs. कंप्लेंट कमिटी यहाँ पर ये डिसीजन भी ले सकता है कि चार्ज ऑफिसर का सैलरी वेजेस से अमाउंट डिडक्ट होगा, जो अग्रीव्ड वोमैन को पेमेंट किया जाएगा और उसका लीगल हेयर को पेमेंट किया जा सकता है. ये डिसीजन भी कंप्लेंट कमिटी ले सकता है. एनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग, सपोज
उसका रिटायरमेंट हो जाता है, सस्पेक्ट ऑफिसर का रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट होने के बाद भी उसको जो टर्मिनल बेनिफिट मिलता है उससे भी जो अमाउंट बचा है उसको विथड्रॉ किया जाएगा और जो अग्रीव्ड ओमेन और उसका लीगल हेयर को पेमेंट किया जा सकता है। तो टू डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी और वेजेस ऑफ द चार्ज ऑफिसर्स such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to her legal heirs. Any amount outstanding at the time of cessation of the services of the charge officer due to retirement, death or otherwise may be recovered from the terminal benefits payable to the officer or his heirs. ये भी डिसीजन हो सकता है कंप्लेंट कमेटी का। ये जो कंपेंसेशन, सच कंपेंसेशन जो चार्ज ऑफिसर का सैलरी से, जो चार्ज ऑफिसर का रेम्यूनरेशन से जो अमाउंट डिडक्ट किया गया उसको एक कंपेंसेशन के आकार में माना नहीं जाएगा। जो रूल 11 है सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स है, उसमें जब पेनल्टी लगता है, माइनर पेनल्टी एंड मेजर पेनल्टी, तब उसमें है कि जो चार्ज ऑफिसर है, ओके, बेसिकली जो कल्प्रिट है उसका सैलरी से विथड्रॉ किया जा सकता है कुछ अमाउंट रिकवरी करने के लिए। मगर ये जो है यहाँ पर बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट केस में जो चार्ज ऑफिसर का सैलरी से जो रिकवरी किया जाता है वो एक कंपेंसेशन के आकार में माना नहीं जाएगा। सच कंपेंसेशन विल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी अंडर रूल 11 ऑफ CCA रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटी में रिकमेंड एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट है विक्टिम, जो कंप्लेन किया है, कंप्लेनेंट वो विक्टिम है, बेसिकली जो अग्रीव्ड वोमैन है। कमिटी में रिकमेंड एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट कंप्लेनेंट इफ द एलिगेशन इज मैलिशियस और द कंप्लेनेंट नोज इट टू बी फॉल्स और हैज प्रोड्यूस्ड एनी फॉर्ज्ड और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट। यदि कोई मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट दिया है, कोई फॉर्स डॉक्यूमेंट दिया है कि वो जो कंप्लेनेंट, जो विक्टिम, जो अग्रीव्ड वोमेन जो कंप्लेन दिया है वो फॉल्स है, तब उसके ऊपर भी एक्शन ले सकता है कंप्लेंट कमेटी। द कमिटी में ऑल्सो रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट एनी विटनेस इफ सच विटनेस हैज गिवन फॉल्स एविडेंस और प्रोड्यूस्ड एनी फॉर्ज्ड और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट। विटनेस के अगेंस्ट में भी एक्शन कंप्लेंट कमेटी ले सकता है। यदि कोई फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट, कोई मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट, कोई फॉल्स व्यूज विटनेस दिया है तो वो कंप्लेंट कमेटी अल्टीमेटली डिटेक्ट किया, तब कंप्लेंट कमेटी उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी में बार बार भी बताया था, जो कंप्लेंट कमेटी ईच एंड एवरी टाइम सबमिट रिपोर्ट विद इन 1 month और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 90 days, नॉट बियॉन्ड ऑफ 90 days। फर्स्ट वन जनरली अप टू 1 month, but it can be extended up to 90 days. As far as practicable, the inquiry in such cases should be completed within 1 month and in no case should it more than 90 days. As per the limit prescribed under Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. जो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक एक्ट, ओके, वन एक्ट एक्चुअली इंप्लीमेंटेड इन आवर कंट्री, ओके, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस एक्ट actually is used to initiate action against the sexual harassment. Steps for conduct of inquiry, कैसे इंक्वायरी कंडक्ट होगा, क्या क्या स्टेप्स है। कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी एज पर रूल 14 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील बस CCA रूल्स 1965। जो CCA रूल्स 1965 का जो रूल 14 है उसके हिसाब से इंक्वायरी कंडक्ट किया जाएगा। उसका जो प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ रूल 14 ऑफ द CCA रूल्स 1965, द स्टेप्स should be initiated, the proceedings should be initiated, okay, to detect the sexual harassment and initiate action. Internal complaint committee is to be set up at every workplace, मैं बता चुका हूँ। Internal complaint committee is to be set up at every workplace. The complaint committee shall be deemed to be the inquiry authority, ये भी बोल चुका हूँ। जो कंप्लेंट इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है, जो ICC है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, वही इंक्वायरी अथॉरिटी है।
आज पर सेक्शन 9(1) अब ये जो SHWWPPR ये है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 अपर पार्ट में लिख चुका हूं। सेक्सुअल SHWWPPR सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस PPR इट इज प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 उसका एक सेक्शन है 9(1). ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। द अग्रीव्ड वोमन और कंप्लेनेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्लेंट विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट जब हुआ है उसका 3 months के अंदर कंप्लेन करना है। एंड इन केस देयर हैज बीन ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, यदि सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुआ है तो 3 months ऑफ द लास्ट इंसिडेंट। तो 3 months के अंदर जब इंसिडेंट हुआ उसका 3 months के अंदर कंप्लेंट लॉन्च करना है विक्टिम को, जो कंप्लेनेंट को। क्लियर? आज पर सेक्शन 9(1) ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। The complaint committee may however extend the time limit. Complaint committee has power to extend the time limit. Time limit means beyond of 3 months. But the complaint committee should have given reason for what reason time extended beyond 3 months. Beyond 3 months actually given. Under what circumstances it can be given to a victim so that she can lodge complaint beyond of 3 months. The complaints committee may, however, extend the time limit for reasons to be recorded in writing if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the complainant from filing a complaint within the stipulated period. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंसिडेंट होगा रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, तो विक्टिम को, जो कंप्लेनेंट को 3 months के अंदर, जब से इंसिडेंट हुआ उससे 3 months के अंदर उसको कंप्लेन लॉन्च करना है। ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट फैक्ट्स ऑफ द एलिगेशन आर रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड। तो उसको वेरीफाई करेगा फैक्ट ऑफ एलिगेशन को। यही है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट स्टेप, द कंप्लेंट कमिटी वुड नॉर्मली बी इन्वॉल्व्ड एट 2 stages. फर्स्ट वन इज द इन्वेस्टिगेशन स्टेज। इन्वेस्टिगेशन इट इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। एंड सेकेंड स्टेज इज व्हेन दे एक्ट एज एन इंक्वायरी अथॉरिटी। सेकेंड स्टेज एज एन इंक्वायरी अथॉरिटी, वो इंक्वायरी करेगा। द कंप्लेंट कमिटी व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग द एलिगेशंस should make recommendations on whether there is a prima facie substance in the allegations which calls for conducting a formal inquiry. They should avoid making any judgmental recommendations or expressing views which may be construed to have prejudiced their views while conducting such inquiry. Okay, कोई judgmental recommendation नहीं देगा कंप्लेंट कमेटी। जो प्राइमा फासी सब्सटेंस है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होगा, कोई जजमेंटल रिकमेंडेशन नहीं होगा। ओके, कोई प्रेजुडाइज्ड व्यू नहीं देगा कंप्लेंट कमेटी। ऑन रिसिप्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड एग्जामाइन द रिपोर्ट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गया। ऑन रिसिप्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको एग्जामाइन करेगा एंड ए फॉर्मल चार्जशीट इशूड टू द चार्ज ऑफिसर। तब जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास, वो एक फॉर्मल चार्जशीट इशू करेगा चार्ज ऑफिसर को और पूछेगा कि ये केस आपके ऊपर लगा है, क्या आपका व्यू आपको देना है, क्या ये ऑथेंटिक है, तो आपको देना है। तो आज पर रूल 14(5) ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रूल है। ए डिसीजन ऑन कंडक्टिंग द इंक्वायरी हैज टू बी टेकन आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिप्लाई ऑफ द चार्ज ऑफिसर। इफ रिप्लाई ऑफिसर मान जाता है कि हाँ, रिप्लाई चार्ज ऑफिसर अल्टीमेटली एडमिट दैट yes what type of charge it is imposed on me, it is right one, तब वो अगेन इंक्वायरी नहीं होगा। जो सेकेंड पार्ट है कंप्लेंट कमेटी का, वो इंक्वायरी अथॉरिटी के रूप में इंक्वायरी करेगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो उसको चार्जशीट इशू किया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और जो चार्ज ऑफिसर और सस्पेक्ट ऑफिसर और रेस्पोंडेंट उसको एडमिट किया, हाँ जो चार्ज लगाया गया है वो करेक्ट है, तब फर्दर कोई इंक्वायरी नहीं होगा। तो ये जो रूल 14(5) है, यहाँ पर डिसीजन होगा। जब चार्ज ऑफिसर उसका रिप्लाई देगा तब इंक्वायरी होगा कि नहीं, वो एडमिट करता है, इंक्वायरी नहीं होगा, तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डायरेक्टली जो भी एक्शन लेना है वो लेगा, जो भी पेनल्टी लगाना है लगाएगा। यदि वो नहीं मानता है तब इंक्वायरी होगा। जब चार्ज ऑफिसर नहीं मानता है कि मैं नहीं किया, जो भी एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया गया है वो करेक्ट नहीं है, तब
इंक्वायरी अथॉरिटी जो सेकंड स्टेज का है कंप्लेंट कमिटी, वो फिर इंक्वायरी करेगा आज ऑन इंक्वायरी अथॉरिटी। इफ द चार्ज ऑफिसर admits the charges clearly and unconditionally, there will be no need for a formal inquiry against him। एंड जो एक्शन होता है वो रूल 15 में होता है। रूल 14 जो सीसीए रूल्स 1965 सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, जो 1965 जो रूल 14 होता है उसका, उस रूल 14 में प्रोसीजियर्स है, हाउ टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इंक्वायरी इन रिगार्डिंग टू द सेक्सुअल हरासमेंट। मगर जो रूल 15 है उसमें एक्शन लेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्शन लेता है कि किस तरीके का एक्शन, किस तरीके का पेनल्टी, माइनर पेनल्टी लगेगा ना मेजर पेनल्टी लगेगा, एंड फर्दर एक्शन में बी टेकन एज पर रूल 15 ऑफ द सीसीए रूल्स। रूल 15 shows द एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट। रूल तो यहाँ पर दो चीज याद रखना है, सीसीए रूल जो रूल 14 है वो डिफरेंट प्रोसीजर बता रहा है कि कैसे इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स होगा, कैसे ट्रायल्स को इनिशिएट किया जाएगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, जो जो प्रोसीजर है। मगर 15 है वो एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इफ द चार्ज ऑफिसर डिनाइज द चार्जेस फॉर्मल इंक्वायरी इज देन कंडक्टेड। यदि चार्ज ऑफिसर, उसको चार्जशीट दिया गया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिल गया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, वो चार्जशीट इशू किया चार्ज ऑफिसर को, चार्ज ऑफिसर जो रिप्लाई दिया उसमें क्लियरली मेंशन किया कि जो भी एलिगेशन मेरे ऊपर लगा है वो ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं, तब फॉर्मल इंक्वायरी इनिशिएट होगा। द कंप्लेंट कमिटी वुड देयर आफ्टर समन द प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड द चार्ज ऑफिसर, दोनों को समन करेगा। प्रेजेंटिंग ऑफिसर, याद रखना है प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो सब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा। याद रखना है जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल प्रैक्टिशनर होगा तब चार्ज ऑफिसर और सस्पेक्ट ऑफिसर वो भी एक डिफेंस असिस्टेंट का हेल्प लेगा, वो डिफेंस असिस्टेंट तब लीगल प्रैक्टिशनर होगा। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन, जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल प्रैक्टिशनर होगा तब चार्ज ऑफिसर जो डिफेंस असिस्टेंट्स का हेल्प लेगा उसका केस को डिफेंड करने के लिए, वो भी लीगल प्रैक्टिशनर होगा, नहीं तो नहीं है। यदि प्रेजेंटिंग ऑफिसर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तब चार्ज ऑफिसर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में लेगा, जो वो केस को डिफेंड करेगा। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रेजेंट द एविडेंस एंड द चार्ज ऑफिसर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू एंगेज ए डिफेंस असिस्टेंट। मगर यहाँ पर याद रखना है, यदि चार्ज ऑफिसर, यदि कंप्लेंट कमिटी जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल प्रैक्टिशनर है, तब चार्ज ऑफिसर जो डिफेंस असिस्टेंट को का हेल्प लेगा वो भी लीगल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। When the complaint committee appoint presenting officer and presenting officer is a legal practitioner, then at that time charged officer also need the help of defense assistant, also he or she must be a legal practitioner, otherwise not. If the presenting officer is normally a government servant, then in that case also charged officer also need the help of a defense assistant, okay, who may be the government servant or retired government servant. Examination and cross examination of witnesses are done. The inquiry authority would also maintain a document called diary order sheet. ये भी बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो इंक्वायरी अथॉरिटी, जो कंप्लेंट कमिटी है, जो इंक्वायरी अथॉरिटी का हेड है, वो डेली ऑर्डर शीट एक मेंटेन करेगा। डिफेंस एविडेंस वुड बी टेकन, बोथ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड द चार्ज ऑफिसर मे बी अलाउड रीजनेबल टाइम फॉर सबमिशन ऑफ देयर ब्रीफ। देन इंक्वायरी रिपोर्ट इज देन सबमिटेड बाय द कंप्लेंट कमिटी अलोंग विद देयर रिकमेंडेशंस। क्लियर, ये सब स्टेप्स है। कॉन्फिडेंशियलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, उसका जो सेक्शन 16 है, जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होगा। जैसे कोई विटनेस का जो रिपोर्ट है, जो भी चार्ज ऑफिसर जो भी रिपोर्ट दिया, जो भी उसका व्यूज दिया, वो सब कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। आज पर सेक्शन 16 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ऑफ 2013, द आइडेंटिटी एंड द एड्रेसेस ऑफ द अग्रीव्ड वुमेन, रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट मीन्स चार्ज ऑफिसर, सस्पेक्ट ऑफिसर, रेस्पोंडेंट, क्लियर, एंड द विटनेस, information relating to conciliation and inquiry proceedings, recommendations of the committee and actions taken by the employer are confidential and not to be published.
ये सेक्शन 16 को याद रखना है अब सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ऑफ 2013, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ऑफ 2013 उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। नो कोऑपरेशन ऑफ रेस्पोंडेंट, कभी कभी क्या है रेस्पोंडेंट जो चार्ज ऑफिसर है जो सस्पेक्ट ऑफिसर है वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है। इफ रेस्पोंडेंट फेल्स टू अपीयर बिफोर द कंप्लेंट कमिटी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, ओमिट्स टू प्लेड और प्रोड्यूस द एविडेंस, द केसेस शैल बी adjourned टू ए लेटर डेट नॉट एक्सीडिंग 30 days। ये कौन सा सेक्शन है? रूल 14 CCA रूल्स 1965, रूल 1411 III। यदि रेस्पोंडेंट अपीयर नहीं हुआ कंप्लेंट कमिटी के पास तब वो केस को adjourn किया जाता है, मगर वो 30 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। जो भी adjournment होगा वो नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड इन केस द रेस्पोंडेंट फेल्स टू अपीयर और गिव ए रिटन डिफेंस और कोऑपरेट विद द कंप्लेंट्स कमिटी, जो भी है, देन द कंप्लेंट्स कमिटी में कम टू ए डिसीजन विद द अवेलेबल रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड किसमें? रूल 1420 में रहेगा। इधर वो अपीयर हुआ कि कोई रिटन डिफेंस दिया, कोई कोऑपरेट विद द कंप्लेंट्स कमिटी, जो भी है, ये रिकॉर्ड रहेगा रूल 1420 में। नेक्स्ट, एक्शन विदाउट ऑन इंक्वायरी। कभी कभी एक्शन लिया जाता है, कोई इंक्वायरी नहीं होगा, एक्शन लिया जाएगा, रूल 15 को फॉलो कर दिया जाएगा। रूल 15 CCA रूल 1965 को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉलो करेगा, डायरेक्ट एक्शन लेगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगा। कब? द गाइडलाइंस ऑल्सो स्टेट दैट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मे ऑल्सो टेक एक्शन विदाउट द इंक्वायरी if it concludes that it is not reasonable practicable to hold an inquiry। कौन सा circumstances में नहीं होगा inquiry? ना circumstances where the accused threatens or intimidates witnesses will be considered reasons enough to take action without an inquiry। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा circumstances में inquiry नहीं होगा मगर एक्शन लिया जाएगा? जो चार्ज ऑफिसर है, जो सस्पेक्ट ऑफिसर है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ओके, इसी केस में circumstances where the accused threatens or intimidates witnesses will be considered reasons enough to take action without an inquiry। एक एक्स पार्टी डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्स पार्टी डिसीजन क्या है? 3 हियरिंग्स हुआ, 3 हियरिंग्स में जो चार्ज ऑफिसर है, जो रेस्पोंडेंट है, जो सस्पेक्ट ऑफिसर है, वो अपीयर नहीं हुआ। 3 टाइम्स हियरिंग में कंप्लेंट कमिटी उसको बुलाया, वो अपीयर नहीं हुआ। ओके, मैक्सिमम 3 हियरिंग्स। तब क्या होगा? इंक्वायरी को बंद कर दिया जाएगा और इमीडिएटली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाएगा और ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्शन ले जाएगा। तो वही एक्स पार्टी डिसीजंस आर दोज दैट आर रीच्ड इन द अब्सेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट चार्ज ऑफिसर। मैं बोल चुका हूँ, द कंप्लेंट्स कमिटी कैन गिव एन एक्स पार्टी डिसीजन इफ द रेस्पोंडेंट फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज to present himself for 3 consecutive hearings। 3 consecutive hearings में वो absent हुआ कोई बिना कारण से, उसको कोई रीजन देना है कि मैं इस रीजन से मैं अपीयर नहीं हो पा रहा हूँ। वो 3 consecutive hearings में अपीयर नहीं हुआ और कोई रीजन नहीं दिया, कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं दिया। इस केस में जो डिसीजन होगा वो एक्स पार्टी डिसीजन होगा। तो कंप्लेंट कमिटी एक्स पार्टी डिसीजन मीन्स इंक्वायरी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और इमीडिएटली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाएगा और चार्ज ऑफिसर, जो सस्पेक्ट ऑफिसर है, जो रेस्पोंडेंट है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। द कंप्लेंट्स कमिटी कैन ऑल्सो टर्मिनेट द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स ऑन दीज ग्राउंड्स। इस ग्राउंड में टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली इंक्वायरी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, उसको एक 15 डेज नोटिस दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को कि 3 हियरिंग्स कंजिक्यूटिव हियरिंग्स में आप अपीयर नहीं हुआ तो अभी एक 15 डेज नोटिस उसको भेजा जाएगा। यदि वो 15 डेज नोटिस को कंप्लाई नहीं करता है तब इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा इंक्वायरी को और जो एक्शन लेना है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसके ऊपर एक्शन लेगा। द कंप्लेंट कमिटी कैन ऑल्सो टर्मिनेट द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स ऑन दिस ग्राउंड्स। However, ex parte or termination order will not be passed without giving the respondent a 15 days notice in writing। Clear? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयॉन्ड डिसीजन इन ए प्रूवन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अभी सेक्सुअल हरासमेंट जो केस है वो प्रूव हो गया और जो एक्शन लेना है चार्ज ऑफिसर, जो सस्पेक्ट ऑफिसर था, उसके ऊपर एक्शन हो गया। तो उसके बाद क्या है? फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर ए डिसीजन इन ए प्रूवन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ए वॉच शुड बी केप्ट टू एंश्योर दैट शी इज नॉट सब्जेक्टेड टू वेंडिटा। फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, केस प्रूवन होने के बाद अप टू 5 years वो नजर में रहेगा
ओके, जो विक्टिम है उसको नजर रखा जाएगा, ठीक है। शी शुड नॉट बी पोस्टेड अंडर द रेस्पोंडेंट और एनी अदर पर्सन where there may be a reasonable ground to believe that she may be subjected to harassment on this account। वो जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट मीन्स जो अल्टीमेटली जिसको कल्प्रिट कहा गया, जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट लगा था और वो भी प्रूव भी हो गया, तो उसके अंडर में पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा जो विक्टिम को, और कोई एनी अदर पर्सन, कोई रीजनेबल ग्राउंड है जो उसको फिर वो जो वोमेन एम्प्लॉय है, जो विक्टिम है, उसको और हरासमेंट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ विक्टिमाइजेशन द कंप्लेंट में सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यदि भाई 5 ईयर्स केस प्रूवन होने के बाद 5 ईयर्स के अंदर यदि फिर विक्टिम को सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, तब वो एक रिप्रेजेंटेशन देगा हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, और जब रिप्रेजेंटेशन देगा, सो विद इन 15 days ऑफ द प्रेजेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्शन शुड बी इनिशिएटेड। The representation should be dealt with sensitivity in consultation with the complaint committee and a decision is taken within the 15 days of the submission of the same। जो रेड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, केस प्रूव हो गया, चार्ज ऑफिसर के ऊपर एक्शन हो गया, सस्पेक्ट ऑफिसर के ऊपर एक्शन हो गया, जो फिर उसके बाद 5 ईयर्स के अंदर उसको सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है विक्टिम को, तो वो रिप्रेजेंटेशन देगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को। तो इमीडिएटली विद इन 15 days ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, ओके, इमीडिएटली द कंप्लेंट कमिटी शुड टेक डिसीजन, ओके, बिकॉज इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम टाइटल सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स, सी बॉक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, याद रखना डिपार्टमेंट का नाम, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसका टाइटल्ड है सी बॉक्स। सी मीन्स एस, कैपिटल एस, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ओके। ऊपर में देखो सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, उसका फुल फॉर्म है सी बॉक्स, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स ऑन 24 जुलाई 2017। ये ईयर के ऊपर आएगा। इन व्हिच ईयर द सी बॉक्स, ओके, लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट इज 24 जुलाई 2017 फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो आप उसी साइट में सी बॉक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका जो ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सी बॉक्स में विक्टिम कंप्लेंट कर सकता है। वंस ए कंप्लेंट इज सबमिटेड टू द सी बॉक्स, इट विल बी डायरेक्टली सेंड टू द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी एटसेट्रा हैविंग जुरिसडिक्शन टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट। और जो पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो www.cbox.nic.in, ओके, उसी को ब्राउज करके जो विक्टिम वो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर कंप्लेंट कर सकता है, और इमीडिएटली वो जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसमें वो फिलअप किया है, तो इमीडिएटली वो मिनिस्ट्री क्या करता है ना, उसको उसी कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देता है, उसी कंसर्न डिपार्टमेंट का कंप्लेंट कमेटी को भेज देता है अब उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करने के लिए। थर्ड पार्टी हरासमेंट के ऊपर व्हेन सेक्सुअल, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। व्हेन सेक्सुअल हरासमेंट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और ओमिशन बाय एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इंस्टीट्यूशंस में कोई एम्प्लॉई, ओके, सपोज पर्टिकुलर वुमेन एम्प्लॉय को हरास नहीं किया, कोई आउटसाइडर उसको हरास कर रहा है, तभी भी द एम्प्लॉयर and person in charge will take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action. नेक्स्ट जो एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, SHWWPPR Act 2013 has been promulgated, means regulated on 22nd April 2013 but act notified on 9th December 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। regulated on 22nd April 2013 but act notified on 9th December 2013। the act and the rules framed thereunder
प्रोवाइड ए रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, all ministries or departments shall furnish a monthly report to the Ministry of Women and Child Development, giving details of number of complaints received, disposed of and action taken in the case. So complaint committee एक ईयरली रिपोर्ट वो कंसर्न उसका कंसर्न डिपार्टमेंट को देता है, मगर यहाँ पर जो डिपार्टमेंट एक्चुअली जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो भी मंथली रिपोर्ट देते हैं। किसको ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, giving details how many cases actually, how many complaints received, how many cases disposed of, okay, how many cases pending beyond 90 days, okay, then what type of awareness programs carried on to prevent sexual harassment. Suppose if the case is already proven, then what type of action is initiated, ये सब के ऊपर मंथली रिपोर्ट यहाँ पर देता है। कंप्लेंट कमिटी ईयरली रिपोर्ट देता है उसका कंसर्न डिपार्टमेंट को, मगर यहाँ पर जो ऑल द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट वो मंथली रिपोर्ट देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताया, जो कंप्लेंट कमिटी का हेड होगा वो एक सीनियर लेवल का वुमेन एम्प्लॉय होगा उसी ऑर्गेनाइजेशन का। सपोज वो नहीं मिला, इफ सीनियर लेवल एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल एट वर्क प्लेस, प्रेजाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिस। प्रेजाइडिंग ऑफिसर इज द हेड ऑफ द कमिटी, कंप्लेंट कमिटी। तो यदि सीनियर लेवल एम्प्लॉई वर्क प्लेस में नहीं मिलता है तब प्रेजाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिस। इन केस, सेकंड पॉइंट, इन केस सीनियर लेवल एम्प्लॉई इज नॉट अवेलेबल एट अदर ऑफिस, देन शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एनुअल रिपोर्ट में बार बार बताया, ईच एंड एवरी टाइम कंप्लेंट कमिटी सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, ओके, एनुअली। सो उसके ऊपर मैं क्लियर कर चुका हूँ। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच एनुअल रिपोर्ट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयर इज 31 जनवरी ऑफ एवरी ईयर फॉर द प्रेसिडिंग कैलेंडर ईयर। थोड़ा सेक्शन 4 को जाएंगे, जो कमिटी के ऊपर कैसे कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगा। ये सेक्शन 4 ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, उसका सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आईसीसी कैसे फॉर्म होगा। प्रेजाइडिंग ऑफिसर शैल बी ए वुमेन सीनियर लेवल एम्प्लॉय एट द सेम वर्क प्लेस। सेम वर्क प्लेस में जो सीनियर लेवल एम्प्लॉय है और पर्टिकुलरली वो वुमेन होगा, वो हेड होगा, प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा। 2 members बेसिकली एम्प्लॉइज ऑफ द पर्टिकुलर वर्क प्लेस कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और हैव लीगल नॉलेज। 3rd member एनजीओ और आउटसाइड मेंबर, मैं बार बार बताया, तो एनी टाइप ऑफ अनड्यू प्रेशर सपोज शुड बी हैपेंड और एनी अदर टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके, शुड बी हैपेंड। सो फॉर दिस रीजन थर्ड पार्टी ऑल्सो नॉमिनेटेड। थर्ड पार्टी बिलोंग्स टू एनजीओ और आउटसाइड मेंबर हु इज फैमिलियर विद द सेक्सुअल हरासमेंट केस। बेसिकली जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनका 5 years एक्सपीरियंस होता है, उनको लिया जाता है। नोट्स में एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स में बोल चुका हूं, जो हेड होगा वो सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय होगा सेम वर्क प्लेस का, क्लियर। और जो मेंबर्स होंगे एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी वुमेन एम्प्लॉय। एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स शैल बी वुमेन इन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। 3 साल के लिए कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, वही था लास्ट पॉइंट है। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी शैल होल्ड मेंबरशिप फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 years। पूरा में डिस्कस किया। सो प्लीज माय फ्रेंड्स गो थ्रू इट प्रॉपरली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड विथ क्लैरिटी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल Asit Government Rule Guru, so that in subsequent time you can get notifications of upcoming videos related to the conduct rules and CCA rules 1965. Thank you.